રાખવા છે હવે તમારે. બોલીએ ભગવતી ગૌ માતાની, નંદી મહારાજની. આજે વિશ્વની સૌથી મોટી અને વિશ્વની સૌથી પહેલી એવી 31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મ ચેતના પદયાત્રાનું શુભાગમન આજે આપણા ગામમાં થયું છે. સાથે કેટલાક ઘણા કઠોર સંકલ્પો પણ લીધા છે. જેમ કે છેલ્લા 13 વર્ષથી એમણે અનાજનો ત્યાગ કરી મૂક્યો છે. અનાજનું એક પણ દાણું મોઢે નથી મૂકતા. માત્ર ગૌ માતાજીનું દૂધ અને અલ્પાહાર લઈને જ પોતાનું જીવન ચલાવે છે. ઉઘાડા પગે ચાલે છે. પગે કોઈ પણ પ્રકારના બૂટ, ચંપલ, પગરખા નથી પહેરતા. ભલે શિયાળાની શરદી હોય, ચોમાસાનો વરસાદ હોય કે ભયંકર ઉનાળાનો તડકો હોય, પણ ઉઘાડા પગે ચાલે છે. અને ચાલવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના વાહનનો ઉપયોગ નથી કરતા. આખા ભારતમાં 2.5 લાખ કિલોમીટર હાલશે, પણ વાહન પર, ગાડી પર બેસીને નહીં, પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં કોઈના ઘરે જતા નથી, કોઈના મહેમાન નથી બનતા, કોઈના અહીં પગલાં નથી પાડતા ને ક્યાંકથી પણ કોઈ પણ પ્રકારનું દાન, દક્ષિણા, પૈસા, રૂપિયા, ભેટ, ફાળો કશું નથી લેતા. તમે સામેથી આપો તોય લેવામાં આવતું નથી. અહીં સુધી કે જે ગામમાં અને જે ઘરમાં ગાય માતાઓ ન હોય એ ગામનું ને ઘરનું તો પાણી પણ નથી પીતા. સુખદાયી આસનોનો ઉપયોગ નથી કરતા. સોફા, ગાદલા ઉપર વિરાજમાન નથી થતા. માત્ર દરી, ચટાઈ, શેતરંજી ઉપર જ વિશ્રામ કરે છે. મોબાઈલ ફોનને સ્પર્શ નથી કરતા. મોબાઈલ ફોન પોતે સાથે રાખતા નથી. અને આટલું મોટું કામ કર્યા છતાં પણ એમને પોતાનું નામનું લોભ નથી કે મારું નામ થવું જોઈએ, એવું કંઈ એમને લાલચ નથી. એમણે જાતે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું કોઈ પણ પ્રચાર. વિચારી શકો છો કે આજે આપણા ગામમાં કેવા મહાન તપસ્વી સંતો પધાર્યા છે, જે આપણા પાસે કશું નથી લેતા, છતાં આપણા સૌને સત્સંગના માધ્યમથી કેટલું બધું આપી જાય છે, જેથી આપણું જીવન સુધરી જાય છે. આજે આપણા સૌના અહોભાગ્ય છે કેવા મહાન તપસ્વી સંતો આપણા ગામમાં પધાર્યા. એમના પગલાં તો આ છે કેવા મહાન તપસ્વી સંતોના મુખારવિંદથી આજે આપણા સૌને સત્સંગનો લાભ મળશે. જેના ઘણા ભાગ્ય હોય છે એને જ આ લાભ મળે છે, બધાને મળતું નથી. તો વધારે ન કહેતા માત્ર આટલું કહીશ કે પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં આપણા સૌને જે કંઈ પણ સંભળાવશે એ આપણે સૌ શાંતિપૂર્વક બેસીને સાંભળશું અને પોતાના જીવનમાં ઉતારી પોતાનું જીવન સફળ બનાવીશું. હવે પરમ પૂજ્ય ગુરુમાના ચરણોમાં. श्री राम, श्री राधे, राधे, श्री राधे. सभी धर्म प्रेमी सज्जन अपना आसन ग्रहण कर ले. नेत्र सभी के बंद, रीढ़ के हड्डी से. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या देवी सर्वभूतेषु करणिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी. पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः. अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतोमि शरणं किमस्ति. सकल गो भक्तों की गौशाला धाम की. सकल देवी देवताओं की गेल मातनी. हो नमः पार्वती पतये.
हर हर महादेव। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उतंग आसन पर आसीन होकर खत्म हो जाते हैं पर सहज ही शिव निशब्द होकर के शून्य की ओर अग्रसित हो जाता है। ऐसे अनंत आनंदमय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। सर्वदेवदायिनी, मंगल करनी, दुख हरणी, आनंद प्रदानी, इस भारत भूमि पर विराजमान सकल भारतीय गौ माताओं के श्री चरणों में मेरा मानसिक रूप से नमन। अर्थ, काम और मोक्ष जिनके पवित्र चरण कमलों में विद्यमान है, जिनके सुंदर सिंहों का आश्रय पाकर के जीव अपने आप को जानने की स्थिति में जान के चरणों में भी मेरा बारंबार वंदन। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ करने वाले सभी पुरुषार्थी भाई बहन एवं उनके पुरुषार्थ को मेरा वंदन। साथ ही विराजमान आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हरिभक्त, गोभक्त, आप सभी के भीतर विराजमान परम शक्ति परमात्मा तत्व को नमन करते हुए आप सकल भौतिक देहधारियों को मेरा हृदय से राम राम। અમારી ઉપસ્થિતિને લઈને તમારા મનમાં ઘણા નગર જસદણમાં પહોંચી છે। આ યાત્રાના પ્રણેતા મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ ભગવાન છે અને યાત્રાને સફળ બનાવવા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવ ભગવાન ઘણા બધા કઠોર સંકલ્પો તો લીધા અને साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा को एक सुंदर दिव्य अलौकिक नियम दिया है, जो नियम सुनकर के आपको भी प्रसन्नता होगी। हमारी यात्रा का एक सुंदर सा नियम है। यात्रा के यात्री, पदयात्री, कार्यकर्ता, संत, अतिथि कभी किसी के घर नहीं जाते। कहीं से भी रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती, फूल, माला, भेंट स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि पानी भी हम कहीं से मांग करके नहीं पीते हैं। अगर कोई प्रेम से पानी करवाते हैं, बाकी बिना कहीं से मूल्य चुकाए पानी लेना भी हमारी परंपरा में अपराध है। आपके गांव में आए हैं, जितनी देर जैसे आप सज्जनों की इच्छा होगी उतनी देर आपको भगवती गौ माता जी की सुंदर सी कथा सुनाएंगे। तत्पश्चात बिना कुछ ले यहाँ से अगले गांव के लिए रवाना हो जाएंगे, सिर्फ मानव के कारण या यूं कह लो एजुकेटेड पीपल्स के कारण, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम जैसे जैसे पढ़ लिख करके बड़े होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। कारखाने, फैक्ट्रीज में से निकलने वाला जहरीला धुआं, पानी के कारण भी वायु और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जितना भी जल हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसका सारा वेस्ट और सारा का सारा पानी जलाशय में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जल भी दूषित होता चला जा रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई तो चल ही रही है और इसी तेज गति से अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हम लोगों को सांस लेने के लिए भी शुद्ध प्राणवायु धरती पर मिलने वाली नहीं है। ये सभी प्रदूषण मिटे और सभी प्रकार के पशु, प्राणी, जीव जंतु, वनस्पतियों को अपना निज जीवन जीने का अधिकार मिले, ये इस यात्रा का पहला उद्देश्य है। यात्रा का दूसरा उद्देश्य वर्तमान समय में अंधश्रद्धा और पाखंड एजुकेटेड पीपल्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो अंधश्रद्धा जड़ से खत्म हो। अंधश्रद्धा किसे कहते हैं? जो चीज सच नहीं है उस चीज को सच समझ करके स्वीकार करना, इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। और ऐसी अंधश्रद्धा जबरदस्त भारत भूमि पर चल रही है। जैसे कि आजकल के नौजवान भाई बहनों में एक अंधश्रद्धा है, एक रेस लगी हुई है कि हमें फेयर रंग चाहिए, गोरा रंग चाहिए। और गोरा होने के लिए वो क्या करते हैं? आए दिन भारत के मार्केट में नई नई फेयर क्रीमें लॉन्च की जाती हैं और वो उन्हीं क्रीमों को लगा करके गोरे होने का सपना देखते हैं। सोचिए, क्या क्रीम लगाने से शरीर का रंग गोरा हो जाएगा? और अगर क्रीम लगाने से ही शरीर का रंग गोरा होता तो फिर ऐसी फेयर क्रीमें हिंदुस्तान में क्यों बिकती? ऐसी फेयर क्रीमें तो फिर वेस्ट इंडीज जैसे देशों में बिकनी चाहिए थी, जहां पर सांवले वर्ण के लोग ज्यादा है।
यह ऐसे देशों में बिकनी चाहिए थी जहां पर श्वेत और अश्वेत का भेदभाव है, लेकिन अफसोस वो क्रीमें अपने भाई जिन गाय माता जी को महान समझा जाता था, माता जान करके सेवा होती थी, आज उसी गाय माता को हम पशु समझ रहे हैं। ये गो विषय का ज्ञान मिटे, हम गाय माता जी की दिव्य महिमा को जाने, समझे, पहचाने और भगवती गो माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्नशील, उत्कृष्ट जीवन जिए। ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक संशय और आप लोगों के मन में होगा कि તમારી આ બધી વાતો બહુ સરસ છે, પણ તમે ગાય માતાની કથા કહેવા માટે આવ્યા છો? અરે ગાય માતાની કથા કેવી રીતે થાય? गाय तो पशु छे, प्राणी देने लग गई। ऐसे कहिया कि भला कैसी कोई कथा हो सकती है? ऐसा विचार हम लोगों के मन में क्यों आया? क्योंकि हमने गाय माता जी को पशु, प्राणी, ढोर, मवेशी, जानवर समझा और धरती पर भगवान का अवतार है भगवती गाय माता। इससे भी बड़ा सत्य अगर आप समझ करके तो हमें गाय माता में भगवान નું દર્શન ન થયું, તવા વાળું પણ નથી। કેમ? क्योंकि हमने गाय माता को चमड़ों की सामान्य दो आंखों से देखा और चमड़ों की आंखों से कभी भगवान के दर्शन होते नहीं हैं। आप सभी लोग मंदिर में जाते होंगे, कोई रोज, कोई कभी कभार। आप देखना, कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले मंदिर के सीढ़ियों पर प्रणाम करेगा। फिर आपको, हमको किसने सिखाया? क्या मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कृपया आंखों बंद करीने भगवान रा दर्शन करवा? कोई साधु संतों ने, मंतों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने हमें कहा? किसी ने हमें कहा नहीं, कहीं हमने पढ़ा नहीं। फिर भी आप और हम सभी आंखें बंद करके ही भगवान के प्रणाम करते क्यों? सच ये है सज्जनों, ये आंखें आप और हम बंद नहीं करते। मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान हम लोगों को प्रेरणा दे करके कहते, बेटा इन सामान्य सी दो चमड़ों की आंखों से अगर तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे भगवान की जगह भाटा पत्थर नजर आऊंगा, परमात्मा की जगह पीतल या तांबे की मूर्त नजर आऊंगा। इसलिए इन चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय की आंखों को खोल करके देख, तब जाकर के तू मेरे वास्तविक रूप को जान सकता है, मेरे सत्य स्वरूप को पहचान सकता है, मेरे भगवत रूप को प्राप्त कर सकता है। भगवान के दर्शन करने के लिए हमें हृदय की आंखों को खोलना पड़ेगा। हृदय की आंखें खोले बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है। हमने गाय माता जी को सामान्य सी दो चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए तो गाय माता जी हम लोगों को गाय माता दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, देवी गुणों से संपन्न है। तो हम घंटे भर की कथा आगे कर लेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं गाय माता जानवर, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, महाभारत, रामचरित्र मानस, हनुमान चालीसा, अनेकों अनेक धर्म ग्रंथ है और इन सभी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं की महिमा गाई। किसी भी वेद शास्त्र पुराण में देवी देवताओं के मद और करणी माता जी की अखंड ज्योत भी हमारे संग चल रही है। लेकिन विचार करो, जिस भगवान के बिना इस धरती का एक पेड़ का पत्ता भी पककर के धरती पर नहीं गिर सकता, एक मिट्टी का रजकण भी उड़ करके इधर से उधर नहीं जा सकता, ऐसे ही सर्वसमर्थ भगवान जब इस धरती पर नर्तन धारण कराते तो उनके मलमूत्र का पूजन नहीं होता, जबकि गाय माता जी के गोबर और गोमूत्र का, जिनके गोमूत्र के लिए आज का मेडिकल साइंस कहता है द बेस्ट एंटीबायोटिक टॉनिक इन वर्ल्ड इज इंडियन काउ यूरिन। गाय माता जी का गोमूत्र इस संसार में सबसे श्रेष्ठ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला द्रव्य है, ऐसा अगर वैज्ञानिक भी कहते हो तो सोचने जैसी बात है। ऐसे गोबर गोमूत्र की दाता भगवती गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है? हमने गाय माता जी को पहचानने में भूल कर दी, गलती कर दी। गाय माता जी तो भगवान की भी भगवान थी, लेकिन ऐसी भगवती स्वरूपा गाय माता जी को हमने जानवर समझ करके रखना शुरू किया। और सज्जनों, जिस दिन से हमने गाय माता को जानवर समझ करके रखा है उसी दिन से हमको चराया। जब तक श्री कृष्ण भगवान ने गाय माता को चराया, अपने पैरों में जूते, चप्पल, बघर की सैंडल, पहुनिया नहीं पहनी, नंगे पैर कृष्ण भगवान ने गाय माता को चराया। क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे जूते चप्पल खरीदने के। जिनके पास 9 लाख गैया स्वर्ण और रजत आभूषण पहनती हो, उन कन्हैया जी के घर पर जूते बनवाने के लिए धन की कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान नंगे पैर गौ माता को चराते। कारण
सज्जनों, दरअसल पहली बार जब कृष्ण भगवान गौ माताओं को चराने के लिए रवाना हो रहे थे तो उसका मुहूर्त निकाला गया। शांडल ऋषि आए, मुहूर्त निकाला। कल की अष्टमी बड़ा शुभ दिन है, कल अष्टमी के दिन ही कृष्ण गौ को चराने के लिए जाएंगे और उसी दिन कृष्ण भगवान गौ माताओं को चराने के लिए भी निकले। अब तो मैं एक बात बताओ, नावानो धोवानो खावानो पीवानो मुहूर्त निकले छे? નથી નીકળતું। મુહૂર્ત તો કોઈ ખાસ ચીજ હોય, સ્પેશિયલ ચીજ હોય, વિશેષ કામ હોય ત્યારે મુહૂર્ત નીકળ્યા કરે। અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગાય માતાને ચરાવવા માટે રવાના થયા અને ત્યારે મુહૂર્ત निकालू तो इसका दुला करके नई 3 चीजें श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दे दी। एक सुंदर सा लखोटी छड़ी दे दी, एक काली कंबलिया दे दी और एक जूतों का जोड़ दे दिया। लखोटी को भगवान ने शस्त्र बना करके गौ माता की रक्षार्थ अपने हाथों में धारण कर लिया। काली कंबलिया को सहज भाव से कंधे पर डाल दिया और जूते पहनने से मना कर दिया कि माँ मैं जूते नहीं पहनूंगा। मैया ने खूब समझाया, कान्हा तो जंगल जाएगा, काटे कंकर भाटे पत्थर होंगे, चुभेंगे तेरे नाजुक से चरण कमल खराब हो जाएंगे। लल्ला जूतों को पहन ले, कहते नहीं माँ मैं जूते तो नहीं पहनूंगा। मैया ने भगवान के मंदिर में जाती है कि हाँ जाऊं छू, तो पग में बूट चप्पल पहन का नहीं जाती। मैया जी ने कन्हैया को धीरे से मार के कहा, अरे मेरे बोले लल्ला, लाला मंदिर में भगवान होते हैं और भगवान के सामने जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, नहीं तो भगवान का अपमान हो जाता है। तुरंत कृष्ण भगवान ने कहा, ओ मेरी प्यारी दुलारी मैया, तू अगर अपने भगवान के संग सामने जूते चप्पल पहन के नहीं जावे तो तू ही बता, 33 कोटि देवी देवताओं को 68 करोड़ तीर्थों को अपने तन में धारण कर हम मानव के कल्याणार्थ गोलोक धाम से धराधाम पर अवतरित भगवती गौ माता जी के संग सामने में जाऊं तो जूते चप्पल पहन के जाने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? हम जिनसे सोच समझ कर बताओ, ऐसी भगवती गाय माता जी भला पशु कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसी भगवती स्वरूपा गाय माता को हमने जानकर समझ करके रखा। और सज्जनों, जिस दिन से हमने गाय माता को जानकर समझ कर रखा है उसी दिन से तो अपने जीवन में दुख और तकलीफ। 2 साल की उम्र पूरी करते कोई गोली टिकड़ी खा करके सोने की जरूरत पड़ती थी? ऑपरेशन की जरूरत कतई नहीं। आज हमारी हालत क्या है? 70-80 साल तक मुश्किल से जीते हैं, जिसमें भी 40-45 साल की उम्र में टीबी, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, एलर्जिकल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। थयू बीजी बात करो मन के सुख की, तो मन किसमें प्रसन्न रहेगा? हम हंसते हंसते जीवन कब जी सकते हैं? कुछ लोगों का मत है मनी इज एवरीथिंग, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या वास्तव में बहुत सारा धन कमाने से अपन मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने लग जाएगी? कुछ माताओं का कहना है हाँ, कुछ माताओं का कहना है ना। बंगले में आपसे आपके घर का कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता। माँ बाप, सास ससुर, भाई देवरानी के सज्जनों, जीवन जीने के लिए 4 पैसे कम हो तो चल जाएगा, लेकिन परिवार में अगर मधुरता नहीं है, मधुर संबंध नहीं है तो वह जीवन कटने वाला नहीं है। और वो प्रेम आज से 35 वर्ष पहले तक था। कितना प्रेम था समाज में। 4 भाई की शादी, इतनी खांड एट ए टाइम एक ही टाइम पे अपने घरों में मिलेगी? बच्चे को दौड़ाना पड़ेगा, दुकान थी खांड लेना भी जा। भगवती गाय माता संसार के सारे सुख में गाय माता जी की कृपा से सहज ही मिल सकते हैं। शर्त गाय माता जी को माता जान करके आंगन में बांध के सेवा करनी पड़ेगी, जैसी सेवा आज से 35 साल पहले अपने बाप दादा करते थे। आज हमने गाय माता को जानवर समझा। हमारा सीधा सा फंडा है, दूधा पे जेटले माता माता दूधा को बंद कर दूध दे लाता ने घर सुबाने निकाला। अब गाय की क्या जरूरत, दूध तो डेयरी पर मिल जाता है। दूध के लिए गाय माता रखने की क्या जरूरत है? भैंसे दूध ज्यादा देती, जाड़ा देती, भैंसों को रख लेंगे। इस सब का अर्थ सिर्फ इतना सा कि आज हम गाय माता को जानवर समझते हैं और जिस दिन से हम इंसान होने, लोक और परलोक के दोनों ही सुख आप लोगों को मिल जाएंगे। समस्त सुखों की प्राप्ति गो कृपा से हो जाएंगी। चलो कुछ सुखों की चर्चा कर लेते। बहुत लंबी चर्चा तो 1 घंटे में नहीं हो सकती, पर जैसे लोग जनता बैठी है उस हिसाब से चर्चा करेंगे। सर्वाधिक संख्या में माताएं बैठी और माताओं को चाहिए क्या? निसंतान को संतान, संस्कारी संतान का जन्म, समय पर बेटा बेटी का सुख मिल जाए, बच्चे हो तो बीमार नहीं पड़े, मांदा नहीं रहे। आप माताओं से
जैसे किसी घर में विवाह लग्न हो जाए, शादी होकर के 5, 10, 7 साल बीत जाए और अगर उन दोनों पति पत्नी को संतान सुख नहीं मिले तो वो दुखी हो जाते। संतान हो इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम, फकीर, दोरा, धागा, राखोड़ा सब कुछ कर लेते, फिर भी संतान सुख नहीं हो तो दोनों पति पत्नी निराश होकर के बैठ जाते हैं। निपुता बांझड़ी को, शब्दों को, कलंकों को समझ अपने माथे ले। अगर ऐसा आपके घर परिवार में कोई है कि शादी शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा है, गले में गल कंबल है, झालर ये जाड़ा मोटा मांस गले में लटकता है और बोले तो उसको माता जी के मुख से आवाज निकलनी चाहिए मां। ये 3 लक्षण जिनमें है उन्हीं को कहते हैं भारतीय देश का निवासी। और गंगा जी पाप धोवाणु काम करे छे। अगर कोई पाप छे, श्राप दोष, काम दोष, कर्म दोष, तो आ बद्दा दोष खत्म थई नहीं उस घर में संतान की किलकारियां गूंजेगी। इसलिए गोमूत्र पान, गोमूत्र स्नान और ऐसी एक कटोरी खीर रोज प्रतिदिन 1.25 महीने तक लेनी, जिससे गर्भाशय की समस्त समस्याओं का समाधान होकर के वो नारी गर्भ धारण करने की शक्ति अर्जित कर जाएगी। ब्लॉक ट्यूब है, चुपकी हुई है, संक्रमित है। महाभारत के विराट खंड में लिखा है, सहदेव जी राजा विराट को कहते हैं, ए साम अपि मूत्र मुपा अपि बंध्या प्रसूयते, कि मैं कैसी कला को जानता हूँ जिसको करने से बूढ़ी बंध्या नारी बंध्याकरण से मुक्त होकर के संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर जाती है। मतलब अगर ट्यूब ब्लॉक है तो देसी गैया बेल भगवान का, नंदी भगवान का मूत्र कांच के शीशे में भर के रखो, जिसको सिर्फ सूंघ लो, सूंघने मात्र से ब्लॉक ट्यूब खुल जाती है। आजकल के डॉक्टर्स भी यही करते हैं, अमोनिया गैस से खोलते हैं, बस वो कृत्रिम तरीका होता है और ये नेचुरल तरीका है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। फिर ऐसा करने से कम 1.25 वर्ष, ज्यादा 2.5 वर्ष में नारी को संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। जैसे ही कोई भी नारी गर्भ धारण करती तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मुझे उत्तम संतान देना। गड़पड़ में, बुढ़ापे में 4 धाम की यात्रा करावे न करावे पर बीमार થઈ जाओ। अंतिम काम रात्रि को सोते समय देसी गाय माता जी का दूध पी करके सो जाना है। अब तमे केवोगा घंटीनोनी बाळकनो संबंध बहुत गहरा है। घंटी लोड दळवाणो साधन छे, पर घंटी लोड बनावाना साथे साथे वधारे संस्कारी छोकरो અને छोकरी बनावा की सेवा करने वाला ही बनेगा। पहले घर घर में घंटी फेरी जाती, संतानें कैसे जन्मती। 25 वर्ष की उम्र में भी अगर लड़के को उसके पिताजी चाटा मार दे तो पलट करके अपने बाप को जवाब नहीं देता था। आज के 25 साल का लड़के चुपचाप मार खा लेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खुद का अपमान करने की शिक्षा नहीं देते हैं। फिर भी अगर बच्चे आज ऐसे हुए हैं तो इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए उनको अलग से कुछ आपने प्रोवाइड किया ही नहीं। बीजू जब नारी मुंह से भगवान के गीत गाती तो इस सब का असर भी पेट के बच्चे पर पड़ता है। पहले घर घर में घंटी फेरी जाती, माता बहनें मुंह से भगवान के गीत गाती तो बच्चे भी ऐसे होते, कहीं घंटी की आवाज सुन लेते, कहीं भजन सुन लेते तो ताली पीट करके राम राम किया करते थे। अब आज के बच्चे राधे राधे जो भगवान होते हैं उस भगवान की शक्ति आप और हमको मिलती है। पहले घर घर में गाय माताएं थी, वो बेटियां ज्यादा भारी काम गर्भ अवस्था में करती नहीं करती, लेकिन रोटली जिमा देती, पानी पिला देती, 24 घंटे में 5-6 परिक्रमा अपने आप हो जाती थी। अब सोच समझ के परिक्रमाएं करनी पड़ेगी। और गो परिक्रमा से बच्चा बहुगुनी बनता है। पहले बहुगुनी तो बच्चे थे, नौकरी धंधा भी कर लेते, खेती बाड़ी भी कर लेते, कोई पारंपरिक अपना बाप दादाओं का धंधा है तो उसको भी वो कर लेते थे। अब ऐसे ऑलराउंडर बहुगुनी बच्चे बने हैं। जो नौकरी करना जानता है उसको खेती करना आता है। इसलिए अगर आज भी बहुगुनी संतान चाहते हो तो गो परिक्रमा जरूरी है। अंतिम काम रात्रि को सोते समय गाय माता का दूध पी करके सोना है। तमे कहोगा दूधनो नहीं बाळकनो शो संबंध? तो भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा नारी 9 महीना सुधी जेऊ पीसी दूध एवं बनसे पुत। कन्हैया जैसा बेटा होगा। और नारी अगर 9 महीने तक भैंस का दूध पिएगी तो फिर पांडे जैसा बेटा होगा। और पांडा कभी किसी की सुनता नहीं है। तमारे ध्यान से भाइयों ने तो चौक्कस ध्यान से तमे गाड़ी लेने जाओ छो, क्या पण तमे गाड़ी में बेसीने जाओ, रस्ते में गाय माता बैल भगवान भैंस और पाड़ा मिल जाए, आप गाड़ी का हॉर्न बजाओ। हॉर्न की आवाज सुनते गाय माता जी बैल भगवान सड़क से नीचे उतर जाते। बोलो भैंस उतरती है, वगड़ता जाओ उतरे छे। अबे तमे बताओ जिस भैंस को गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देता, ऐसी भैंस का दूध पी करके पेट के अंदर बड़े होने वाले बच्चे बुढ़ापे में आपकी आवाज सुनेंगे? आ माटे केवुं छुं, सारी संस्कारी संतान अगर तमारे जोती होय तो पछी आप 3 काम करवा छे।
दूध का असर पड़ता है। तमें जो अगर आपको बुढ़ापे तक का विषय थोड़ा कठिन लग रहा है तो अभी अगर आपके घर में 12-15 साल के बच्चे, उनको छोटे छोटे 4 काम बता दो, बिल्कुल छोटे छोटे। बेटा देख, ऊपर का दरवाजा बंद करके आ जा और बाहर 2 कपड़े सूखने लेके आ जा लल्ला। छोटे छोटे 2 काम बता दो, 4 काम बता दो, कर लेंगे? करे छे न करे? પછી બધા કામ તમને પોતાને કરવા પડે। પછી ક્યારે माताएं हो गई कम, इसलिए दूध पीते हैं भैंसों का, और भैंस का दूध पीने के बाद स्थिति ये है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है 12 થી 14 મળે છે। 5-7 डॉक्टर साहब देते सलाह, बहू को बेड रेस्ट करना पड़ेगा। धंधा बिल्कुल नहीं करेगी तो टाइम पास करवा माटे बहु रानी शू करसी? मोबाइल देखेगी, और मोबाइल में जैसा धड़ाम धूम धाड़ धीड़ डिशुम डिशुम देखेगी, वैसा का वैसा पेट का बच्चा बनेगा कि नहीं बनेगा? जन्मने के बाद वो जब उठ पटांग हरकतें करता है तब बोलते हो हमारे खानदान में तो ऐसा कोई नहीं था, ये भूत कहाँ से जन्मा? तो मम्मी ने टुचुक टुचुक किया इसलिए ढिचक ढिचक वाला भूत जन्मा। मम्मी रामकृष्ण के चरित्र पढ़ लेती, राणा प्रताप के चरित्र पढ़ लेती तो घर घर में राम। महाभारत में लिखा है अर्जुन जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाई। सुभद्रा जी की समझ में आई नहीं आई, लेकिन पेट के अभिमन्यु चक्र भेदने की कला को सीख गए और बड़े होकर के महाभारत के रणभूमि में चक्रव्यूह को भेद करके अपने नाम को इतिहास में अमर कर गए। इस संसार की सबसे बेस्ट रेसिपी है माँ का गर्भ। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर सीख सकता है वो बाहर आकर के सीखने वाला नहीं है। आ माटे तमारी सारी संतान जोती हो तो आ 3 काम माता बहनों ने करवा छे। कुछ कुछ माताएं नाराज होती कि मम्मी को ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पापा नो घणो बड़ो असर तो बेटे पर पड़ता नहीं, सबसे ज्यादा असर तो मम्मी का ही पड़ता है। इसलिए तो हिरण्यकश्यपु पापी था, दुष्ट था, राक्षस था, लेकिन घर में भक्त प्रहलाद जैसा बच्चा जन्मा। क्यों? क्योंकि माँ का यादू भक्ति करने वाली थी, इसलिए भक्त प्रहलाद जन्मे। और विसर महर्षि प्रचंड ज्ञानी थे, लेकिन घर में दुष्ट रावण जन्मा। क्यों? क्योंकि माँ की इतनी राक्षसी थी। जैसी माँ होती है वैसी बच्चा जन्मता है। इसलिए माताएं अगर इन नियमों का पालन करती है, में नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन पेट को शिरा लगाएंगे, बच्चे को निकालेंगे, माता जी का पेट बिगड़ेगा, पिताजी का पैसा बिगड़ेगा, दादाजी की, बच्चा जी की तो पूरी जन्म कुंडली बिगड़ जाएगी। क्योंकि बच्चा जन्मा ही नहीं तो जन्म कुंडली बनेगी कहाँ से? और ऑपरेशन कुंडली का कोई फॉर्मूला ज्योतिष शास्त्र में है नहीं। एक बार नाम अक्षर गलत निकला कि जिंदगी भर के मुहूर्त गलत निकलते चले जाएंगे। इसलिए डिलीवरी तो नॉर्मल ही होनी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कामधेनु चंद्रोदय चिकित्सा नामक ग्रंथ में राजवेद्य रेवा शंकर जी कहते हैं कि देसी गाय माता का 5-6 किलो गोबर लेकर के आ जाओ, फ्रेश ताजा सूती कपड़े में डाल करके दबा दबा करके रस निकालो, और उस गोबर के रस का 1 कटोरी गोबर का रस 2 से 3 टुकड़े में बहू बेटी को पिला दो। कम से कम आधा घंटा, ज्यादा 1.25 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, इसकी पक्की गारंटी। कोई मेडिकल साइंस इसको चैलेंज नहीं कर सकता। और आप ये भ्रम मत रखो कि आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां गोबर का रस पिएगी, यूं तो नहीं पिएगी, लेकिन उस समय दर्द ऐसा भयंकर होता है, इतनी भयंकर तकलीफ होती कि मीराबाई जी का जहर का गटरा भी कट कट करके पी जाए तो भाई गोबर तो अमृत है, अमृत क्यों नहीं पिएगी? उस समय उस कष्ट से बचने के लिए और अपनी संतान की सुरक्षा के लिए पी लेगी। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। जैसे घर में पहली बार लड़का हो जाए तो मजा है, बाबो थयो पोता। और अगर बेटी हो गई तो बहू के दीकरी थई छे, बाबो तो हमारो अने दीकरी तो बहूनी छे। ऐसा भेद आज भी भारत भूमि पर है। अगर इस प्रकार के भेद से कोई नारियां परेशान है, कुछ माताएं मेरे पास पर्सनली आकर के मिली हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, पर काफी समाज में ऐसा है कि पहला लड़का ही होना चाहिए, तो दोबारा बच्चे के लिए हाँ ही नहीं कहेंगे। और मेरी खूब इच्छा है कि मेरी बिटिया रानी हो। अगर आप चाहते हो कि कन्या रत्न का प्राप्ति हो जाए तो जाति के फूलों को, जूही के फूलों को घृत में मिलाकर के यजुर्वेद के मंत्र के साथ अगर आहुतियां दी जाए तो उस घर में कन्या रत्न का जन्म हो जाता है। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक घर में सबसे पहला जन्म कन्या का ही होना चाहिए, क्योंकि कन्या पर जन्मने वाला पुत्र या पुत्री माता पिता का विशेष ध्यान रखने वाले, सेवा करने वाले संस्कारी होते हैं।
स्कंद पुराण तो ये भी कहता है कि घर घर में कन्या का जन्म होना ही चाहिए, क्योंकि जिस घर में कन्या का जन्म नहीं होता वो घर स्मशान के समान है। स्वयं मां पार्वती जी कहते हैं बेटी तो होनी चाहिए। अब क्या करे, पहले का तो मौका छूट गया, लेकिन अब 2 बेटे पर मेरी खूब इच्छा है कि तीसरे बार में लड़का हो जाए, तो उस नारी को जैसे ही तीसरी बार गर्भ धारण करे कि बराबर 1.25 महीने बाद सिर्फ 7 दिन में कन्या का जन्म होता है। हालांकि कन्या के जन्म में इंटरेस्टेड कौन है? शिवलिंगी के बीच पंसारी के दुकान पर मिल जाएंगे ये नाम, ये मंत्र, ये विधियां या खीर के बनाने की विधि, जितनी भी बातें मैंने अब तक सुनाई वो आपके यूं ध्यान में नहीं रहेगी, पर ये सारी की सारी बातें आपको लिखित में यहाँ चुपड़ी में मिल जाएगी। तब चिंता हो जाए, इसकी कोई भी औषधि नहीं है। 2 लड़के और 2 बेटियां पहले से ही घर में हैं, और उसी नारी को अगर तीसरी कन्या चाहिए तो औषधि है। बाकी अगर आप लोग में आकर के पहली या दूसरी बार में ही लड़का जन्म जाए इस औषधि को लोगी तो नारी का गर्भ बिगड़ जाएगा। इसलिए इस मेरा स्पष्ट अनुरोध है कि पहले से 2 कन्याएं अगर घर में हैं और तीसरी बार पुत्र चाहिए तो ही इस औषधि को ट्राई करना। यही शिवलिंग पुत्र का जन्म होता है। वटांकुर अगर नासिका में डाल करके गर्भधारणा हो तो भी पुत्र रत्न का जन्म होता है। पर ये सारी बातें आपको लिखित में मिलेगी, क्योंकि इन औषधियों के नाम श्री क्रांति, धाती, ध्रुवा इत्यादि आपके ध्यान में रहने वाले नहीं, वो सारी चीजें आपको लिखित में मिल जाएगी। होनी चाहिए। फिर सेकेंडरी चीजें स्कूल कॉलेजेस। पहली चीज, बच्चे को अगर पढ़ाई करवाना चाहते हो तो 2 गुण आलस्य रही शरीर दोस्त्रा तेज दिमाग। आलसी बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, मंद बुद्धि का बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं, एग्जाम में लिखेगा नहीं, पास होकर के अगली धोरण में जाएगा नहीं। आलस्य का संबंध है तन से, बुद्धि का संबंध है मन से, तन मन का प्रकटीकरण होता है अन्न से। गीता जी में योगेश्वर भगवान ने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। आजकल गौ माताएं हो गई कम, भैंसे हो गई ज्यादा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के धरती पर भैंसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और आज हम अपने बच्चों को दूध सर्वाधिक भैंसों का ही पिला रहे। तो सीधी सी बात है, अगर बच्चे भैंस का दूध पिएंगे तो वो किसके जैसे बनेंगे? भैंस के जैसे। हंस रहे हो आप, लेकिन असर पड़ेगा। तो मैं एक बात बताओ, दाल रोटली खाया પછી જેટલું કામ થાય એટલું જ કામ દાલ અને બાટી ખાયા પછી થાય નથી થતું? રોટલી અને બાટીમાં ફરક શું છે? બંને વસ્તુ ઘઉંના લોટની મીઠું નાખ્યો, લોટમાં પાણી નાખીને લોટ બાંધ્યો, આટો બાંધ્યો, दोनों को अग्नि पर सेका, दोनों को घी लगाया, बात सारी बराबर। फर्क खाली एटलो छे, चपटी रोटली चपटी छे, उस चपटी रोटी को खाकर के अच्छा खासा काम हो जाता है, और गोलमोल बाटी को खाकर के हम भी गोलमोल होकर के सो जाते हैं। अच्छी बात। केवल मात्र भोजन का आकार बदलने मात्र से अगर अपने जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो प्रकार बदलने पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर हम बच्चों को दूध भैंसों का पिलाएंगे तो ऑब्वियसली भैंस ऐसा होना है। और आज लगभग आप हम सभी के सभी भैंस का दूध पीते, और भैंस इस संसार का 1 नंबर का आलसी जानवर है। आप देखना, भैंस काफी करके चारों पैर चौड़े करके पड़ी रहती है, बेटी बेटी पेशाब सुसु कर देती, इतनी गंदी होती है, उसी में पूछ डुबो करके नाना धोना उसका हो जाता है। गाय माता ने તમે જો જ્યારે પણ ગાय माता गोबर गोमूत्र करसे ત્યારે ઊભા થઈને वहाँ भी बताओ, जिस भैंस को लघु शंका करना जैसा छोटा सा काम करने में आलस आया, ऐसी आलसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों को पढ़ाई करने में, बड़ों को काम करने में, आप माताओं को बैठ के पोछा लगाने में जोर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये बात कम समझ में आई हो तो दूसरी और एक बात सुना दो आपके घर में। देखना, गाय माता નું दूध पीवा वाળું બાળક સવારે 5:30-6 વાગે ઉઠીને નહીં ધોઈને તૈયાર થઈ જશે। ડોબાનું દૂધ પીવા, જર્સીનું દૂધ પીવા વાળું બાળક કોઈ 6:30-6:45 વાગ્યા સુધી ઉઠે છે, અને ડોબાનું દૂધ પીવા વાળું બાળક કેટલી વાગ્યા ઉઠે છે? 8 વાગ્યા। પછી તમે ગાળ બોલો છો, હું પાડા જેવું પડ્યો છે, ઉઠ, સ્કૂલ જાઉં છે। तो भैंस का दूध पिला इसलिए पाड्डे की तरफ पढ़ाया गया का दूध पिलाते तो उड़ जाता। आलस्य बढ़ता है भैंस के दूध से। डॉक्टर स्पष्ट कहते हैं कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांस फैट की अधिकता होने के कारण पाड्डा भी दूध पीने के बाद सोता है, जबकि गाय माता का दूध तरल पतला होने के कारण गैया मैया का दूध पीने के बाद उसका खुद का बछड़ा भी दौड़ लगाता है। पहले गैया का दूध पीता નથી। તમે જોજો તમારા ગામમાં ઘણા બધા માણસો છે, સવારે ગાય માતાનું दूध કાઢે છે, પછી ગાય માતાને છોડી દે, આખો દિન ગાય માતા અહીંયા મૈયા ફર્યા કરે, પર સાંજે दूध આપવાનો ટાઈમ થાય અને ગાય માતાજી પોતાના ઘરના બાને આવીને ઊભા થઈ જશે। તમે ડોબાને મોકલો કે જા આખો દિન ફરીને સાંજે આવી જાજે, ડોબો આવશે? અકલી નથી, ક્યારે આવશે?
इसलिए तो मुहावरा बना આગળ મોટી કે બસુરેમાં ઘણા બધા મુહાવરા ભેંસી ભેંસ માટે બનેલા છે. તમે કોઈકને બહુ સમજાવો વાત ખબર ન પડે તો કે ભેંસના આગળ વીન વજાવવાથી ફાયદો નથી. કોઈકનું કામ બગડી જાવે તો કહેવે છે ગઈ ભેંસ પાણીમાં. कोई अंगूठा चापे पढ़ाई लिखा बिल्कुल नहीं आती तो कहते इसका तो बात समझने की है. अगर सारे संस्कारी बच्चे चाहते हैं तो दूध गैया का ही उत्कृष्ट है. अगर आप मेरी बात आपको समझ में नहीं है तो आप घर पे करके देख लो. कल सुबह रोटली बनाने के बाद एक बढ़िया सी पकी सी की रोटली थाली में रख करके घी गुड़ लगा करके घर के बाहर ले खड़े हो जाना. कोई भी परिचित गाय माता आपके घर के बाहर से निकले, उन गाय माता का आवाज दे करके रोटली जमाना. बराबर दूसरे दिन 24 घंटे बाद वही गाय माता जी आपके घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाएगी. भैंस को बादाम का हलवा जमा दो आएगी क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है. इसलिए तेज दिमाग अगर चाहते हो तो दूध गौ माता जी का ही सर्वोत्कृष्ट है. गैया मैया के दूध से बुद्धि बढ़ती क्योंकि गौ माता में ऐसी शक्ति है. जितने भी सूर्य नारायण भगवान की किरणें गौ माता पर गिरती उसमें से सवितो नामक किरण में से लिक्विड गोल्ड 60 तरल स्वर्ण क्षार खींच करके गाय माता अपने दूध में उतार देती है और दूध में उतरते उतरते वो पदार्थ सेलरोसाइड में परिवर्तित होता है. परिणाम स्वरूप गौ माता का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है. बोलो गौ माता नी. बच्चे की बातें बहुत सारी हैं. पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते भूल जाते, कुछ विषयों में अंक आते, कुछ विषयों में अंक नहीं आते, उम्र વધે છે, ટકા ઓછા થાય છે. આ બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન તમને અહીંયા વિદ્યાદાયની ગૌમાતા નામની ઝૂંપડી મળશે. આમાં લખેલું મળી જશે. क्योंकि विस्तार से बात करने के लिए समय कम है, फिर उठ के जाने वालों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है. इसलिए अब विषय को अति संक्षिप्त में आगे बढ़ाऊंगी. बाकी अगर आप बच्चों की उन्नति चाहते हो तो पावर बढ़ती है. उगते हुए सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाओ, मंत्र बोले आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमस्तुते. इससे स्मरण शक्ति बुद्धि बढ़ती है. तीसरा गौ की परिक्रमा करानी ताकि गौ माता की सकल देवी देवताओं का आशीर्वाद उनसे मिलने में उनके कारण सभी विषयों के प्रति उनका आकर्षण या रुचि बढ़ करके उनका सभी में उन्नति प्रोग्रेस होती है. और रात्रि को सोते समय 10 बजे पहले दूध पी करके हर हाल में उनको सुला दो. पर दूध श्रावण महीने में नहीं पिलाना है, सिर्फ 11 महीने करके देखो. निश्चित रूप से बच्चों की तरक्की है. आगे बढ़ते जैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, बेटियों की होगी सगाई. धरती पर कोई भी माँ बाप हो जैसे अपनी बेटी 17 से 22 का मतलब बेटियां खुद समझदार होने के बाद सगाई करती है. अच्छे घराने की बेटियां माँ बाप को तो कुछ नहीं कहती पर भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मुझे पत्नी अच्छी देना, पति अच्छा देना. अच्छे का मतलब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं खाता हो, समाज में उसकी इज्जत हो, 4 पैसे कमाता हो और पराई औरत की तरफ कभी गलत नजर डाल करके नहीं देखे. ऐसा संस्कारी पति अगर आपके बहनों को, भाई बेटियों को, भांजी भतीजों को चाहिए तो हम आटे एक छोटू 9 सोमवार अनुष्ठान है. जो अनुष्ठान माँ सीताजी और माँ रुक्मिणी जी ने करके विपरीत परिस्थिति में भगवान राम और कृष्ण को पति रूप में पाया है, वही अनुष्ठान आपके लिए बता रहे हैं. 9 सोमवार अनुष्ठान છે. આમાં સોમવારના દિવસે સવારે વહેલા ઉઠીને ગાય માતાના ગૌમૂત્ર જળથી સ્નાન કરવું છે. ગૌમૂત્રના સ્નાનથી શું લાભ છે તમને ખબર પડી ગઈ. પાપમુક્ત થઈને તમે કોઈ પણ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરો તમને લાભ મળશે. પછી ગાય માતાના છાનાના રાખ પિતાંબરના લોટાને સારી રીતે સાફ કરીને સ્વચ્છ જળ ભરવું છે અને આમાં ગાય માતાનું કાચું બે ઘૂંટ દૂધ ભરવું છે. ભોળાનાથના મંદિરે જઈને બેટી ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરીને બધું જળ ભોળાનાથના ઉપર ચડાવી દે. અર્ધ પરિક્રમા કરીને ભોળાનાથના ચરણોમાં મા પાર્વતી સે પ્રાર્થના કરે કે મારો સારો પતિ મળે એવી કૃપા કરજો. ઘરે આવીને ઘરની ગાય માતાની 9 પ્રદક્ષિણા કરવી છે અને મોઢાથી મંત્ર બોલવું છે. જય જય ગરીબ રાજ કિશોરી, જય મહેશ મુખ ચંદ ચકોરી, જય ગજબદન षडानन माता जगत जननी दामृत दिगाता. ये मंत्र रामचंद्र मानस में भी लिखित में मिलेगा और यह जो चोपड़िया मिलेगी दही छाछ અને રાત્રે ઊંઘવાના પહેલા દેશી ગાય માતાજીનું दूध. इन 3 वस्तुओं के अलावा पानी भी मुंह के अंदर नहीं डालना. तो फल फ्रूट चिप्स तो भूल ही जाए. खाली सवारे गोमूत्र, बपोरे दही छाछ और रात्रि दूध. इन 3 चीजों पर रह करके जो भी बेटी 9 सोमवार का अनुष्ठान करेगी, 11 सोमवार पूर्ण होने से पहले उस बेटी के लिए उत्तम कुल खानदान से बढ़िया लड़के का रिश्ता आएगा और उस बेटी के लिए निश्चित रूप से शादी सगाई तय हो जाएगी. करके देख लो. बेटी घर की लोटा घर का. शिवजी गांव के मार्केट जाना नहीं, 2 रुपए की चीज लानी नहीं, घर बैठे अनुष्ठान हो जाएगा. पहला सोमवार जैसे अश्विन महीने का भी शुरू हो और बेटियों से अनुष्ठान करवा लेना. जिंदगी भर की झंझट खत्म हो जाएगी. 9 दिन भले ही भूखा रहना पड़ेगा. बेटों की बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कुंवारे बेटे आए ही नहीं हैं. बेटियां तो आ गई अपने माताओं के साथ, दादियों के साथ, लेकिन लड़के आते नहीं हैं. जो सत्संग में नहीं आते हैं वो क्या गौ की परिक्रमा करेंगे.
फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारा बेटा बढ़िया है, कह लेगा कर लेगा, अच्छी पत्नी चाहिए जो उसकी भी सेवा करे, हमारी भी बुढ़ापे में सेवा करे, तो लिखित में मिल जाएगा। बात करते हैं अंत में कमाई की। पैसा आज एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। हर जगह पुरुष भाइयों के जीवन में पैसे का 5 मिनट का समय, आधा कप गौमूत्र, किसी के घर नहीं जाना, किसी को घर नहीं बुलाना, 2 रुपए का खर्च नहीं, घर बैठे अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। आणि 3 लोटा में શું થશે બધું? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, गेट नेट एग्जाम दे रहा है, 1-2 पॉइंट से रह जाता है, इंटरव्यू 50 दे दे, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग गई, प्रमोशन नहीं हो रहा है, दुकान धंधा डाल दे, अच्छे से चल नहीं रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नील होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी आर्थिक समस्या है, सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। અને તમે એવું કહેવોગા કે 3 લોટામાં એટલું બધું થઈ જશે? તમારા મનમાં કોઈ સંશય તો તમને અમારી વાત સંભળાવું છું। છેલ્લા 9.5 વર્ષથી અમારી યાત્રા હાલે છે, 19,700 ગામોમાં ફરીને આવે છે, પણ આ સુધી અમે અમારી યાત્રા ઉપર 1 રૂપિયાનું યા 1 કપ ચાયનું કલક નથી લાગવા દીધું ક્યાંથી, પણ કઈ પણ જાતનો દાન ફાળો ભેટ ઉપહાર અમે લેતા નથી। ખર્ચ અમારા बहुत है। તમે જોવો છો એ અમારી 3 યાત્રાઓ છે, 3 यात्राओं में 14 तो गाड़ियाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारा जो पारंपरिक बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको मेरे गुरुदेव सिर्फ 20 मिनट देखते और 20 मिनट में इतना पैसा आ जाता है। इससे पहला लोटा जल उगते हुए सूर्य भगवान को चढ़ाना है, मंत्र बोले आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यम प्रभाकराय नमस्तुते। दोबारा लोटे में जल ले ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवजी पर जल चढ़ाए। शिवजी पर जल चढ़ाते समय उनके जटाओं में, गले में, भुजाओं में जो नाग देवता उनका स्मरण करना है, क्योंकि कलिकाल में सबसे ज्यादा धनी नागकुल के नाग देवता है। तीसरी बार लोटे में जब जल ले, तब पितृदेवताओं के नाम से गौ माता जी के खुर के चिन्ह में उस जल को चढ़ा देना है। इस तरीके से उल्टे हाथ में लोटा ऐसा करके 3 लोटे जल भाई लोग चढ़ा दें। फिर गाय माता की 9 प्रदक्षिणा करके 1 खुर में 2 नाग देवता, 4 खुरों में 8 नाग देवता और कुछ में 1, ऐसे खुरों में अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम वित्राष्ट्रम तक्षकम कालीम तथा। इसमें वो लाभ होगा। 1.25 महीने तक तो कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा, लेकिन 1.25 महीना बीत जाने के बाद इधर उधर दिया हुआ, रुका हुआ, अटका हुआ पैसा, काम धंधा, कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। 3.5 महीने अनुष्ठान करवाना अपने पति पुत्र पिता से, अगर उनको फायदा नजर आए तो फिर जब तक धन चाहिए तब तक भाई लोगों करते रहना। और 3.5 महीने करने के बाद भी आप भाइयों को कोई फायदा नजर नहीं आया तो हमको रोकने टोकने आ जाना। मेरी बात अगर झूठी निकली तो उसी दिन मैं यात्रा को बंद करके वापस आश्रम चली जाऊंगी। आज से 3.5 महीने बाद हम आपको नवसारी जिले में मिलेंगे। संपर्क सूत्र, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ जो झोपड़ियाँ मिलेगी उसमें लिखित में मिल जाएगा, करके देख लो। बस शर्त इतनी सी है, इस अनुष्ठान को आदमी पुरुष लड़के ही कर सकते हैं, आप माताएं नहीं कर सकते। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ पति पुत्र पिता से करवाना पड़ेगा। बीजू करवाने वाले को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 8 बजे उठने वाले को फायदा होने वाला नहीं। जिस गैया जी की पूछ पकड़ोगे वो गाय माता देसी इंडियन भारतीय गाय माता खुद की होनी चाहिए। तमारा घरे 4 भैंसो छे, डोबा छे, 2 जर्सीओ छे, कूतरो छे, તમે પાડોશીની ગાય માતાજીની પૂંછડી પકડીને મંત્ર બોલો છો, એવી રીતે કામ હાલવા વાળું નથી। તમારી પોતાની ગાય માતા ન હોય તો લઈને આવી જાઓ, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे लोग कुत्तों को भी स्कूटी पर घुमाते, कार में बिठा करके ले जाते हैं, तो फिर कुत्ते की सेवा कर सकते हो तो एक नन्हे मुन्ने बछड़ा बछड़ी की सेवा भी हो सकती है। कठिन क्या है? फ्लैट सिस्टम में हो तो गैलरी में लिफ्ट में बिठा करके मैया जी के ले जाओ, असंभव कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठान लिया जाए तो क्या कठिन है सज्जनों, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपका किराए का मकान है, ट्रांसफर होता रहता है, फिर गैया कैसे मैनेज करेंगे? तो जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ आस पड़ोस में जो भी गौशाला है वहाँ देसी गाय माता जी की गोद चले जाओ। उन गाय माता का बेटा बेटी बन करके उनकी सारी सेवा की वीरों के लिए त्याग और बलिदान दाएं हाथ का खेल है। अब अंतिम बात करते हैं, मौत पर करके दर्शन देना। ओहो बस ठीक है ठीक है। जो भी 6-7 हाथ खड़े हुए हैं उनको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। जिस घर में गाय माता जी का गोबर
उससे समाधान नहीं हुआ तो पसीना चाटती है। जैसे डॉक्टर रक्त पेशाब लेकर के हमारे रोगों की जांच करते, वैसे गाय माता जी पसीना चाट करके जांच कर लेती है कि इसको कौन सी बीमारी हुई, किस हद तक हुई है, कैसे फैल रही है। और जंगल से जाकर के जंगली औषधियाँ खा करके गाय माता जी हम लोगों को दूध, दही, गोबर, गौमूत्र के माध्यम से देती है। इसलिए हमारे शरीर में कोई रोग टिकता ही नहीं है। कोरोना काल में जिनके घर में गाय माता बंदी, उनमें से किसी को कोरोना हुआ हो तो बताओ। जहां गैया है वहां रोग नहीं आ सकते। हाँ, जो गैया के पास नहीं जाते, सहलाते नहीं, गोबर गौमूत्र उठाते नहीं हैं, उनको तो हो सकते हैं, पर जो प्रत्यक्ष गौ की सेवा में उनको बीमारियां होने वाली नहीं है। इसलिए फर्स्ट चीज तो अगर निरोगी काया का सुख चाहते हो तो गौ के संपर्क में रहना सीखो। गाय माता जी के करीब रहो, गोबर गौमूत्र के बीच रहने की कोशिश करो, आंगन में गैया को बांध लो, बहाने करना छोड़ दो। और निरोगी काया के लिए 3 नियम बता रही हूँ। सबसे पहला, रोज सुबह आधा कप देसी गाय माता का गौमूत्र पी लो, जिसमें 388 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं और गौमूत्र पीने से वो अपने शरीर में बैलेंस हो जाता है, इससे संतुलन बिगड़ता है, नहीं तो रोग होते नहीं। बपोरे जारे पर भोजन करो, 1 वाट की गाय माता, दही नहीं तो छाछ ले लो, जिससे भोजन पच जाता है। और भोजन पचेगा तो खून बनाएगा, सड़ता है तब गैस कब्जा करता है, और भोजन सड़ेगा ही नहीं तो ये बीमारियां होगी नहीं। अंत में रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता, दिन में कभी दूध मत पियो और संध्या के बाद दही छाछ मत खाओ। जिंदगी में कभी कोई बीमारी आपको होने वाली नहीं है। कुछ बीमारियों की चर्चा करें, ज्यादा नहीं। माताएं ज्यादा संख्या में बैठी तो रेगुलर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, लिगामेंट्स घिस गए हैं, डॉक्टर ऑपरेशन ले गए थे, जरूरत नहीं है ऑपरेशन। हड़दर्द लिखित में मिल जाएगा सब। बपोरे 1 વાટકી ગાય માતાના દહીંમાં 1 મંગદા નાના જેટલો ચૂનો નાખીને ખાઈ લો અને રાત્રે 1 ચમચી અશ્વગંધા ચૂર્ણ ગૌ માતાના દૂધના સાથે લઈ લો। 3.5 મહિનામાં 80% ढिचकનું दर्द खत्म થઈ જશે। बीपी की समस्या है, 5 लहसुन की कलियों को हल्का सा पत्थर में कूट लो, 5 मिनट हवा में रख करके और फिर 1 कटोरी गैया के दही में मिलाकर, तो अलग से आपको टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बवासीर है, मलत्याग के साथ खून निकलता है, ऑपरेशन कर लिया फिर भी फायदा नहीं है। सिर्फ 11 दिन तक गाय माता का दूध निकालते ही उसमें 1 नींबू निचोड़ करके पी जाओ। 1 गिलास दूध में 1 नींबू निचोड़ा पिया, 1.5 मिनट में सारा काम हो जाना चाहिए। दूध निकाला, नींबू निचोड़ा पिया, 11 महीने बाबा सिर जड़ से खत्म। पैरालिसिस का झटका आते, नाक में 1-1 टीपा घी डालकर बिल्वपत्र की चटनी मिला करके सुबह शाम दे दो, जिस पर 1.5 घंटे तक कुछ खिलाओ मत। बपोरे 1 વાટકી ગાય માતાના દહીંમાં 31 શામા તુલસીના પત્તા ખવડાવી દો और भोजन के बाद 1 मिलीग्राम हीरे का भस्म 100 ग्राम शहद में रख लो, जिसको बढ़िया तरीके से मिला करके 1 चम्मच उस व्यक्ति को। ऐसी कोई भी एलर्जिकल प्रॉब्लम है तो 3 नियमों का पालन आप कर देना। पहला नियम, जब भी धोकर सिर पर पानी डालो, नीचे से ऊपर नहाते हुए आओ, और रोज नहाने के बाद और सोने से पहले 2 सा गाय माता का घी नाक और नाभि पर लगा लो। 4 महीने में एलर्जिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जीवन भर नियमों का पालन करना, फिर कभी एलर्जिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। बाकी सारी बीमारियां, कमर दर्द है, पिंडों में दर्द है, एड़ियों में दर्द, जलन होना या फिर और भी कोई बीमारियां है, उन सब के विषय में आपको लिखित में मिल जाएगा। अभी अंतिम बात करते हैं और विषय को अंत की ओर ले जाते हैं, और वो है मौत, और मरना तो पड़ेगा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए। प्रश्न ये कि हंसते हंसते इंसान मरेगा कब? हंसते हंसते मरने के लिए सज्जनों जरूरी क्या है? पापी इंसान हंसते हंसते मरेगा नहीं, और पाप तो हम सबके जीवन में है। पाप कहाँ से आते हैं? भोजन से। भोजन आता है खेती से। खेती का कोई भी काम करो, निराई गुड़ाई, पाणत, गाय कटाई कपाई, जीव जंतु सब में मरते हैं। और 1 बोरी अनाज भी अगर हिंदुओं के घरों में आ रहा है तो हजारों जीव जंतु मरने के बाद तो वो पाप का अन्न हुआ कि नहीं हुआ? बीजू पाप तमे घरे लाइने भेड़वो छो। घर पे जैसे अनाज आता है, आप उसको साफ करते हो, नीस नीस करके कोठियों में भरती हो। एक अकेली बहन से साल भर का गेहूं साफ हो जाएगा? देवरानी, जेठानी, नौकरी, मालकन, नौकरानी, 2-4 दुनिया बैठ जाएगी। और ईमानदारी से सच बोलना माताओं, 4 हिंदू माताएं भी एक जगह बैठ गई तो भगवान के गीत गाते गाते काम करेगी? झूठ। थारी मारी चुगली पर पंचायती मुंह से दूसरों की बुराइयां करती हो, और मुंह से जब दूसरों की बुराइयां करोगे तो हाथ से अनाज साफ करोगे तो बोलो उस बुरा का पाप उस अनाज में जाएगा कि नहीं जाएगा? और ऐसे विभिन्न पाप के अन्न को खाने के कारण हमारी मन की बुद्धि बिगड़ती है।
इसलिए पाप मुक्त जीवन चाहते हो तो साधन थे दो। पहला साधन था बेल भगवान, बेल धर्म का साक्षात कहूंगी। अगर आप खुद खेती करते हो तो बेलों से कर लो, और नहीं तो अनाज ऐसे किसानों से खरीदो, कम से कम गेहूं दालें जो चीज आप थोक में खरीद सकते हो ऐसे किसानों से खरीदो जो गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं, जो बेल से खेत हाँकते हैं। ऐसे धर्मराज बेल भगवान के यहाँ का अन्न खरीदो तो धार्मिक बुद्धि होगी। आप देखना जिस घर में बेल भगवान है वहाँ परिवार में सब बुजुर्ग प्रेम से बातें करते नजर आते, क्योंकि धर्म की स्थापना उस घर में। और जहाँ ट्रैक्टर से खेती करते हैं बाप बेटा सास बहू सब में खींचा तानी घुसुम घुसुम नजर आता है। पहला साधन तो आप पे इसका नहीं। दूसरा साधन आप सबके हाथ में था। पहले पढ़े लिखे अनपढ़ नौकरी वाले खेती-वाड़ी सबके घरों में गई आती और पहला माणस શું કરતા પોતાના ખાવાના પહેલા એક રોટલી ગાય માતાને જમાડતા, એક રોટલી ગાય માતાને જમાડતા અને રોટલીનું બધું પાપ જાતું રહે। હવે તમે કેવો એક રોટલીમાં શું ચમત્કાર કે બધું પાપ જાતું રહે। बात बहुत बिल्कुल सरल। તમે एक बात बताओ, जैसे घर पर हमने लड्डू बनाए, उन लड्डू को बना करके हमने खा लिया, सूखे सो आज हमें सूखा दूं लड्डू। उसी लड्डू को बना करके हमने सबसे पहले माता जी को राम जी को भोग लगा दिया, भगवान को भोग लगाने के बाद अगर हमने उन लड्डू को बाद में एक एक करके लिया तो बोलो क्या कहोगे, क्या लिया? प्रसाद। बात सिर्फ इतनी है, गाय माता स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों को आराम है, जिनके सुंदर सिंहों पर सारी सृष्टि का भार है, मूत्र में कल कल बहती भगीरथी गंगा जी की धार है। और ऐसी भगवती गौ माता जी को जब हम खुद खाने से पहले एक रोटली जिमाते तो बचा हुआ भोजन उन गौ माता की दिव्य दृष्टि से प्रसाद बनता है, और उसी प्रसाद को खाने से हमारी आज से तू मेरी माँ में तेरी बेटी प्रेम से सेवा शुरू कर दो। जिनके घर में गाय माता ने आज की संध्या तो हो जाए, पर कल शाम से पहले छोटी सी बछड़ी बाछड़ा गैया कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था करके आंगन में, बालकनी में, गैलरी में, फार्म हाउस पर जहाँ संभव हो वहाँ, नहीं तो कॉलोनी के 10-15 लोग मिलकर के एक छोटी सी जगह लेकर के सेवा करो, लेकिन सामूहिक रूप से वो पर गैया आपके आंगन में या कहीं पर भी सेवा करो। और आउटबेट लगा करके माफी मांग लेना, माँ जानवर समझ के तुझे घर से बाहर निकाल दिया था, आज से तू माँ हम तेरे बच्चे। प्रेम से गैया की सेवा करना, सवा मेहनत करके देखो। खुद खाने से पहले, घर वाले खाए उससे पहले, चौथे या 5वें नंबर की कोई भी सिर्फ एक रोटी जिमा दो। जब भी घर में खाना बने 2-3 टाइम, एक टाइम की एक रोटी। बहुत महंगी बात तो ना बतावी, करके देख लो। पहली रोटली नहीं जिमानी, पहली रोटली सारी नहीं बने तभी ओછી गरम हो बढ़ी जाए छे, फटी फट जाती खत्म हो जाएगी, प्रेम इतना बढ़ जाएगा। जहाँ बाप और बेटा साथ में बैठ के भोजन नहीं करते थे, उसी छत के नीचे पिता के सामने 2 भाई पास में बैठ के एक थाली में भोजन करते नजर आएंगे। ऐसा कोई सुखद परिवर्तन आप लोगों को नजर आए तो जीवन भर आपको माता की सेवा करना, नहीं तो आशीर्वाद तो देगी ही देगी। कभी उनको सरकड़ने के लिए छोड़ना मत, चरने के लिए अकेली को भेजना मत, कभी किसी दुष्ट के घर उनके बछड़ा बछड़ी का सौदा करना मत, नहीं तो दूध देंगे तब तक वो रखेंगे फिर बेच खाएंगे। आंगन में गैया की सेवा करना, कोई बछड़ा बछड़ी मांगे तो ऐसे घर में देना जो जीवन भर उनकी सेवा करेंगे बुढ़ापे में भी। और एक गैया तो आप अपने घर में रखे ही, अगर बछड़ा बछड़ी भी हो तो कोई मांगे तो दे, नहीं तो अपने आंगन में सेवा करना। जब वो गाय माता उम्र पूरी करके आशीर्वाद देती तो बेटा कहती है, बेटा जीवन भर तूने मेरी सेवा की, जा तेरी जीवन मौज से बीतेगा, मरने के बाद मेरी पूछ आएगी, पकड़ के उसको तू पार हो जाएगा। वेतरणी पार करने के लिए वो पुच्छ की जरूरत थी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब जीव मरता है तो शरीर तो जला करके राख हो जाएगा यही, पर जीवात्मा अमर है। नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंत्या। माता को बेच चुके हैं, मार चुके और सेवा के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नरक के अलावा और कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है। अत्याधिक कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक एक गाय माता जी की सेवा आपको घर में करनी ही है, और एक एक पेड़ धरती पर जरूर लगाना, ताकि उस पेड़ में से निकलने वाली वायु हम लोगों को आयु प्रदान करे। बहुत बुरी स्थिति है आज देश में। 4000 वेद कत्तल खाने भारत में आज भी चल रही है, और 82,000 गौ माताएं रोज काटी जा रही है। प्लास्टिक खा करके कटने वाली अवैध कत्तल खाना अगर कट गई तो आप और हम बचने वाले नहीं है। इस चीज को पक्का ध्यान रखना। कश्मीर में जब तक गौ थी, कश्मीरी पंडितों की मौज थी, कश्मीर की गैया कटी, कश्मीरियों को दिल्ली के सड़कों पर आकर के सोना पड़ा।
सिंध प्रदेश में जब तक गो थी सिंधी भाइयों की मौज थी, सिंध की गैया कटी उनको भी भारत आना पड़ा। अगर अपने देश में गाय माता नहीं रही तो आप और हम जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान चीन आने देगा नहीं, अरब सागर में डूब के मर जाए इतनी ताकत हम में है नहीं। उपाय एक, हिंदू बनकर के जीना है तो गाय माता को आंगन में बांधना ही पड़ेगा, और अगर गैया बांधने के लिए तैयार नहीं तो फिर हिंदू बनकर के जी पाओ, ऐसे सपने देखना मत। बात बुरी लगेगी आपको बात, लेकिन बोल दूं, बोलूं, बहुत बुरी लगेगी। जब तक गाय माता थी तब तक हिंदू धर्म के ध्वज ऊपर तक थे। मंदिर बनाने से ही धर्म रक्षा नहीं होगी। मंदिर में जाकर के अगर हम उस भगवत कर्मों में लगे रहे तो हमारी रक्षा होनी है, और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म का मुख्य आधार की माता आई है, उन्होंने ही साड़ी पहन रखी है। जिन्होंने कहीं तो गौ माता की सेवा की है। क्या आजकल की बहू बेटियां साड़ियां पहनने के लिए तैयार है? मांग भरने के लिए तैयार है? सूत्र की भी कोई कीमत तो होगी। पति के नाम से सुहागन नारी के लिए मंगलसूत्र बड़ी चीज थी। अब मंगलसूत्र नहीं पहनती, चिक भी इतनी लगाती, इतनी। अच्छी बात क्या? बिछुआ पहनना बंद कर दिया। और सबसे बुरी बात तो यह है कि जिस गुजरात के धरती पर माता के सिर का पल्लू कभी नीचे नहीं उतरा करता था, आज उसी गुजरात के धरती पर 22 साल की कुंवारी बेटी हो या 40 साल की 2 बच्चों की माँ हो, बिना दुपट्टा लगाए भूतियों की बातें घूमते हुए नजर आती है। सोचते हो आप ये सब कुछ होने के बाद भी हिंदू धर्म बच पाएगा? बुरा लगेगा आपको, लेकिन मुसलमानों की औरतों को मैं पर्सनली कैसे पहचानती हूँ। पंजाबी ड्रेस पहनने के बाद भी सिर अगर ढक रखा और आंखों में शर्म है तो वो औरत मुसलमानों की है, और अगर बिना दुपट्टा ढके हुए, बिना सिर ढके हुए भूतनी की भांति लाशरम बेच करके चल रही तो वो औरत हिंदुओं की है। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता दो। शास्त्र कहते हैं जहाँ शर्म नहीं वहाँ धर्म टिकने वाला नहीं है, और धर्म सिर्फ वहाँ टिकेगा जहाँ गैया है। गैया के बिना धर्म नहीं और शर्म भी नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ियों को हिंदू बनकर के जीना देना चाहते हो तो फिर धीनो शरणम गच्छामि। दादा रामकृष्ण की बातें सुना देती, बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में पता चल शरण जाना पड़ेगा, और जहाँ कुछ बिगड़ गए हैं वहाँ वापस संभल करके अपनी परंपराओं की तरफ लौट के आना पड़ेगा। मेरी बात बुरी लगी हो तो लगने देना, नाराज हो जाओ तो हो जाना, पर सच्चाई तो यही है। अगर नहीं संभले तो आने वाला समय आप लोग देख पाओ, इससे भी भयंकर कठिन रहेगा। एक एक गैया की सेवा में लग जाओ और एक एक पेड़ धरती पर जरूर लगाना, ताकि उस पेड़ से हरियाली बढ़ेगी। अब अंत में 2 सूचनाएं, उसके बाद आपका जल कलश सिद्ध कर दूं, फिर आप अपने अपने घर आराम से चले जाना। 2 सूचना, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, मंत्र, अनुष्ठान, विधि, जो भी वो सारी आपको लिखित में यहाँ मिल जाएगी। यहाँ आपको एक लिफाफा मिलेगा, एक कवर तमने यहाँ મળશે, એક કવરમાં તમને 6 ચોપડીઓ મળશે, અને આ 6 ની 6 બધી ચોપડીઓ તમને ગુજરાતી ભાષામાં લખેલી મળશે। એક છે ગોકૃપાથી નિશ્ચિત સંતાન અને ઉત્તમ બાળકોના સંસ્કાર। આમાં તમારે દીકરો નથી થતો, દીકરી નથી થતી, ગર્ભપાત થાય છે, બાળક 10-12 વર્ષ થઈ ગયા તો પણ નથી છે, યા પછી સારો બાળક જોતે છે, કુશાગ્ર બુદ્ધિનો જોતે છે, માંદો ન પડે આ માટે શું કરવાનું છે, બાળક ચીડચીડ ન કરે આ માટે શું કરવાનું, मोटो थईने वगड़े नहीं, यथा नाम तथा गुण माटे शू करवानो, आ बधी माहिती बच्चों की सारी बातें इसमें लिखी है। पीछे की तरफ गाय माता नंदी भगवान की आरती लिखी हुई है। बीजी चोपड़ी है विद्यादायिनी गो माता। आमा विद्यार्थी भाई बहनों की जेटली पण समस्या है, भणवामां मन नथी लागतो, वणे छे, भूले छे, कोई विषय में सारा अंक नहीं आता, ये सारी प्रॉब्लम, और छोटे छोटे बच्चों की थोड़ी बड़ी बीमारियां, स्मरण शक्ति कमजोर है, चश्मा कम उम्र में लग गया, वो सारी बातों का समाधान इसमें लिखित में मिलेगा। पीछे की तरफ गाय माता जी के YouTube चैनल की जानकारी मिलेगी। जो बातें मैंने आपको कथा में नहीं सुनाई या जो आपको दोबारा सुनने की इच्छा हो, समझ में नहीं आई हो, तो वो YouTube पर चारू दीदी CHARUDIDI ऐसे YouTube में शबला गोपाल चारू दीदी नाम से आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगी। फिर तीसरी चौपड़ी है लक्ष्मी दाता गौ माता। इसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है
पैसा आता है टिकता नहीं, बचत का पैसा चला जाता है। गोबर गोमूत्र से खेती करनी है, धंधा पहले चाचा झोपड़ीમાં વિસ્તારથી રોગનું નામ, કારણ, લક્ષણ, શું ખાવાનું શું નથી ખાવાનું, ગોબર ગોમૂત્ર કેવી રીતે લેશો, આયુર્વેદમાં શું લેશો, આ બધી જાણકારી આમાં લખેલી છે। અને અંતિમ ચોપડી છે ભજન સુમિરણી। તમે વજન ગાઓ છો, બે વજન હવે प्रत्येक देवी देवताओं साथे गाय माता पण गाजो, ताकि लोग गाय माता जी की महिमा को समझे और गौ माता से जुड़े। एवी रीते आ 6 चौपड़ी तमने एक साथ एक जोड़े एक लिफाफे में पैक होकर के मिल जाएगी और इसकी कीमत आप सुनो तो आश्चर्य करोगे, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में आपको ये 6 की 6 चौपड़ियाँ मिल जाएगी। 100 रुपए आज के तरीके में कोई महंगी कीमत नहीं। एक महीने का टॉक टाइम बैलेंस और बच्चों की 2 चौपड़ियाँ भी 100 रुपए में नहीं आती है। आप सभी को 100 रुपए में ये चौपड़ियाँ सारी की सारी मिल जाएगी। आप जरूर लेकर के जाना। भगवत कृपा एवी रीते तमने अहींया आनी पाछळ बाजू 2 जगह चौपड़ी मळी जशे। तमे बधा जना चौपड़ी लेने घरे जाजो, बिना चौपड़ी ले कोई भी घर नहीं जाएगा। सुनो मेरी बात, चौपड़ियाँ तो ले जाओ, घर जाकर के पढ़ो। आपको अच्छी लगे तो रख लेना, अच्छी नहीं लगे तो हमें वापस लौटा देना। हम आपको 100 रुपए लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती ले जाने का बिल्कुल नहीं करेंगे। फल सब्जी कपड़े के थैली में खरीद के लाओ, मूंग चना चावल उड़द कुछ ऐसी चीजें खरीदते हो तो वो भी कपड़े के थैली में खरीदो। दूध दही छाछ की खरीदना है तो केटली में खरीद के ले आओ। प्लास्टिक की थैली में कोई भी चीज खरीदनी नहीं है। प्लास्टिक आप लाते हो, फेंक देते हो, रगड़ती हुई गैया उसको खा जाती है। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दो, आपके घर में से निकलने वाला प्लास्टिक, कांच के टुकड़े और लोहे की चीजें, इन चीजों को खा करके कोई भी गाय माता मर जाती है तो उसको हत्या का पाप किस पर आएगा। और अब तक की इस यात्रा की परंपरा है, हर पिछले गांव वाले अगले गांव तक भगवती गाय माता जी के रथ को छोड़ने के लिए आते हैं। जैसे खूब सारे माताएं बहनें भाई बहन कोट से अगली गांव तक छोड़ने के लिए आए थे, वैसे ही बराबर बोले कितना किलोमीटर है यहाँ से, કેટલું કિલોમીટર છે હડમતિયા? 6 કિલોમીટર। 6 કિલોમીટર ચાલવા માટે 1.5 કલાકનો સમય લાગે છે। સવારે 6:45 વાગ્યા યાત્રા અહીંયાથી આગલા ગામ માટે રવાના થઈ જશે। રાઈટ ટાઈમ 6:45 વાગ્યા। यूं नहीं कि तमें कीधुं छे 7:15 અને તમે આવો 7:30, न। अगले गांव में कार्यक्रम का टाइम दे दिया है, 8:15 बजे वहां पहुंचना है तो आपको ठीक 6:45 बजे आ जाना है और कल सुबह यात्रा को हड़मतिया तक छोड़ना है। एक साथ 33 कोटि देवी देवता 68 करोड़ तीर्थों की यात्रा आप जरूर पूरी करेगी तो कल सुबह हड़मतिया तक आपको हमारे साथ पैदल पैदल अगले गांव तक चलना है। कौन कौन आएगा एक बार हाथ ऊपर करके दर्शन दो। 2 तो भाई आवशे, 3-4 भाई आवशे, माता बहनों में पण आवशे कोई कोई। ठीक है, देखो कुछ माताओं ने हाथ ऊपर नहीं किए, शर्म संकोच के कारण या लोठों के कारण नहीं किया तो कोई बात नहीं, जितना है तो बात अलग है। आपातकाले मर्यादा नास्ती, पर जो नीचे बैठ सकते हो सिर्फ 2 मिनट के लिए नीचे बैठ जाए। लोटे हाथ में धर लेगी माताएं, भाई लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। जैसे ही मंत्र पूरा होता है तब तक तो मंत्र चलेगा, तब तक आंखें बंद रखनी। मंत्र पूरा होते आप माताओं को सीधी नजर अपने ओम शांति भगवान कुर्वत लोकनाथ चराचराय च ब्रह्मणानां सवारवत् शांति कन्यास्य सप्रतिव्रताश्च रोगरक्षन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु वर्षतु कृष्णनां सुभिक्षकाले प्रजनं वर्षतु प्रयुक्तं यस्य कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। शांति। माता बहनें जल कलश पर नजर डालेगी, भाई लोग हाथ जोड़ करके घिस लेंगे दोनों हाथों को एक दूसरे पर मल के, नेत्रों पर रख के इष्ट देव भगवान के स्मरण के साथ अपने पलकों को खोल लेंगे। भगवान के पास कपड़ा बिछा करके लोटे उसके ऊपर ढक्कन दे देना। सबको नीचे कपड़ा बिछा करके लोटा और लोटे के ऊपर ढक्कन देना। अभी शाम से पहले अगर ये पानी आप काम ले सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कल सुबह सूर्योदय के बाद लेना है। काम लेना कैसे है बता दो। घर जाकर के इसमें गांगड़ी वाળું मीठू, एक नानी डળી, हळदर 2-4 चुटकी અને एक तुलसी નું पान। कुछ माताओं ने तुलसी का पत्ता डाल दिया तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। खबर पड़ी गई? पाछू बोलू छो। 2 वस्तु गाय मातानी गोमूत्र અને છાનાની રાખ। ગાય માતાની 2 વસ્તુ। 2 વસ્તુ રસોઈમાંથી ગાંગડી વાળું મીઠું અને હળદર, 2-4 અને આંગણમાંથી તુલસીનું 1 પાણું, એવી 5 વસ્તુ નાખીને આ પાણી બળિયા હલાવ છે। ઘરમાં જેટલા પણ જણા છે બધાને પવડાવ છે। कोई मांदो हो तो 2-2 घूंट उनको ज्यादा पिलाना। बचे हुए पानी में फूल पत्ता कुछ भी डाल के घर मकान दुकान सब तरफ छिड़क देना, पिलाना है।
पानी को छिड़क देना, फिर भी पानी बच जाए तो अड़ोसी पड़ोसी मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो सारा पानी पेड़ पौधे में आज शाम से पहले पहले या कल शाम से पहले पहले सींच देना। 5 वस्तु आज शाम से पहले इकट्ठा नहीं कर पाओ तो ऐसा भगवान के ताक में भगवाननी आ बाजू तमने ચોપડીઓ મળી જશે। પાછળ बाजू પણ हमारे एक भैया खड़े हैं जो मंदिर के बिल्कुल विपरीत साइड खड़े हैं, वहां पर भी आपको चौपड़ियां मिल जाएगी। आपकी सुविधा अनुसार आप चौपड़ियां लेकर के जाएगी। माताएं धक्का बुक्की बिल्कुल नहीं करेगी, आराम से लोटे में पानी रहे तो संभाल के रख लो, वाटर स्लाइड तो उसमें डालो। बोले लो सेकंड में तो क्या कहा जाए, रथयात्रा 33 टाइम विजय चौहान જે ગૌ યાત્રા આવી છે, જે માતાજી છે તે માતાજીને પૂછું છું આ યાત્રાનો શું હેતુ છે અને ક્યાંથી આવી છે। इसी तरीके से ये यात्रा पूरे भारतवर्ष में 2043 तक चलती रहेगी। अब तक यात्रा के माध्यम से 90,000 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए 19,700 गाँव में गौ माता जी की महिमा सुनाई है। यात्रा के मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा हो, अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो और गौ माता जी के वैज्ञानिक आध्यात्मिक महत्व को समझ करके समाज गौ माता से जुड़े सुखी, श्रेष्ठ, निरोगी और समृद्धशाली जीवन जिए। यात्रा का एक नियम है, यात्रा गांव-गांव जाती है लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, दान, खाड़ा या भोजन सामग्री कहीं से भी कुछ भी सहयोग नहीं देती। और आज यात्रा 10 दिन में पहुंची। આ યાત્રા હવે પછી કયા ગામ જશે અને કેટલા વાગે સવારના જશે? 6:45 વાગ્યા યાત્રા ત્યાંથી રવાના થશે અને હટમતિયા ગામ માટે રવાના થશે, ત્યાંથી આગે વિછા જવાનું છે। हमारे से 31 वर्ष में भी अपन भारत के सभी गाँव में संभव नहीं है, 51,000 गाँव में जाना ही संभव है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। एक दिन में अपन 4 से 5 गाँव 6 गाँव करते हैं, 31 वर्ष से ज़्यादा गाँव संभव नहीं है। લીલાપુર થી हाँ, दो गाँव है। लीलावदर, કાલાવદર, હળવદિયા અને લીલાપુર 3 ગામ। अभी शाम को भी 8 बजे कितने बजे?